Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to cover one topic of your chapter 3, that is business environment. The topic which I am covering in this lecture is new economic policy, NEP. New economic policy 1991. The new economic policy was started in 1991. The features of new economic policy 1991, I am discussing it in this lecture. Firstly, see what was new economic policy. As per the economic planning, the government gave lead role before 1991. What was going on before 1991? As per the economic planning, the government gave lead role to the public sector for infrastructure industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of a developing consumer goods industry. At the time, at the same time, the government imposed several restrictions, regulations, and control on the working of private sector enterprise. India's experience with economic planning has delivered mixed results. बिफोर 1991 क्या था बेटा आपका कि गवर्नमेंट का जो लीड रोल था वो पब्लिक सेक्टर प्ले कर रहे थे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़, और जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में कर रहा था. देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ टू रन इन द मार्केट, और इसकी वजह से क्या था कि आपका जो रिजल्ट जनरेट होना था दैट वाज मिक्स्ड रिजल्ट. इन 1991 द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डिफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स. ठीक है, 1991 में गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉसेस हुए, सीवियर जो है सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस गवर्नमेंट ने फेस करा, हाई गवर्नमेंट डिफिसिट वाज देयर एंड द राइजिंग ट्रेंड of prices despite of bumper crops. As a part of economic reform, the government of India announced new economic policy in July 1991. और इन चीज़ों को देखते हुए government has announced a new economic policy in July 1991 for taking out the country out of economic difficulty and for the development of the country. The features of economic policy 1991 are as follows. See the features of new economic policy 1991. Reduced number of industries to 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम. पहले क्या था, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो थी वो लाइसेंसिंग स्कीम में थी, अब गवर्नमेंट ने उसको 6 में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सारी जो था दे कैन रन फ्रीली इन द मार्केट. द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. पहले क्या था आपका बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर ही सारे प्रोडक्शन करता था, बट आफ्टर 1991 ओनली पब्लिक सेक्टर इज सीइंग 4 मेन इंडस्ट्रीज एंड बाकी क्या था आपका, इट वॉज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स. दिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरीड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. बहुत सारी मोस्टली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने प्राइवेट इंटरप्राइजेस में, सेल आउट कर दिया टू द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स. फोर्थ, पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड. ठीक है, क्योंकि हमारे पास मनी नहीं थी तो वी हैव टू जनरेट मनी, तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 100% अलाउ कर दिया था इन द इंडियन इकोनॉमिक मार्केट. Now see beta, 3 major components or elements of new economic policy. There are 3 major components or elements of new economic policy. Number 1, liberalization. Number 2, privatization. And number 3, globalization. What is liberalization? The economic reform that were introduced aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions. Liberalization क्या था? Remove करना सारे restrictions और unnecessary control को remove करना from the private industry. That was called liberalization. और liberalization का aim ही यही था कि जो licensing quotas थे उसको end करना, and जो और बहुत सारे जो more restrictions थे, control थे private sectors के ऊपर before 1990 उन सबको ख़त्म करना. दैट वाज द मेन पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. ठीक है, तो जिससे आपका जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ था प्राइवेट सेक्टर का वो इम्प्रूव हो जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्सक्लूसिवली रोल प्ले करने लगे प्राइवेट सेक्टर एज अ गवर्नमेंट सेक्टर. लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन विद रिस्पेक्ट टू एबोलिशन. क्यों लिया था इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन? कि बाय फॉर एबोलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट. मैंने अभी आपको बताया था कि ओनली 4 इंडस्ट्रीज़ वर देयर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. लाइसेंसिंग 6 इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड था, बाकी सबकी जो लाइसेंसिंग को उन्होंने ख़त्म कर दिया था. Number 2, freedom in declining, deciding the scale of business activities, no restriction on expansion or contraction of business activities. C, removal of restrictions on the movement of goods and services. Earlier, prior to 1991, there was restriction on movement of goods and services. Then after 1991 economic policy, these restrictions were removed. Freedom in fixing the price of goods and services. Now private sectors are free to fix their own prices for their goods and services. Reduction in tax rate and lifting of unnecessary controls over the economy. जो भी टैक्स रेट था उसको कम कर दिया था और जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स थे इकोनॉमी पे उसको भी
ख़त्म कर दिया था इन लिबरलाइजेशन पॉलिसी। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया था फॉर इंक्रीजिंग द जीडीपी रेट ऑफ द इकोनॉमी। Now see the next, number 2 is privatization. The new set of economic reform aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role to the public sector. Privatization क्या होता है? Privatization is giving greater role to the private sector and reducing the role of public sector. To execute policy of privatization, government took the following steps. और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज अडॉप्ट किया था जिसमें उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। दोबारा से रीडिफाइन करा था गवर्नमेंट ने रोल को। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक इंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कई सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी जिससे आपका प्राइवेटाइजेशन हुआ था इन इंडियन इकोनॉमी। और ये प्राइवेटाइजेशन का जब सबसे पहला रूल था दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले उन्होंने डी इन्वेस्टमेंट करा था। डिसइन्वेस्टमेंट क्या था? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को रोल को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2, डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%। जो 51% था पहले आपका, उसको उन्होंने डाइल्यूशन कर दिया ये, और एज अ रिजल्ट इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। नंबर 3, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन बोर्ड सेटअप हुआ था, दैट वाज कॉल्ड BIFR। दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव और क्लोज सिक यूनिट इन पब्लिक सेक्टर। जो भी सिक यूनिट थी पब्लिक सेक्टर थी, मतलब जो इंडस्ट्री बिल्कुल क्लोज अबाउट टू क्लोज थी, हैवी लॉस में जा रही थी पब्लिक सेक्टर, उनको क्लोज डाउन कर दिया ताकि गवर्नमेंट को और ज़्यादा लॉस ना हो। दैट वाज privatization means giving more role to the private sector in comparison of public sector. And number 3 was globalization. Globalization, it refers to integration of various economies of the world. अपनी इकनॉमी को वर्ल्ड इकनॉमी से जोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकनॉमी। ग्लोबल इकनॉमी को इंडियन मार्केट में लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद द इकनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज़ की इकनॉमी के साथ हमारी कंट्री की इकनॉमी का इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। देन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू other countries or from other countries to our country. That was also called export and import. उसको हम export and import भी बोलते थे। Till 1991, the government of India has followed a policy of strictly regulating import in value and volume terms. 1991 से पहले strictly regulation था on import of goods and services, लेकिन उसके बाद क्या था? They have closed these regulations were with respect to licensing of import अगर आप कोई भी गुड्स को कर रहे हैं तो देयर शुड बी लाइसेंसिंग। नंबर बी, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन मतलब टैरिफ कोटाज वर देयर जिसमें आप अपने गुड्स को फ्री फ्लो कर सकते थे फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मीन इतनी क्वांटिटी तक के गुड्स को ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट क्वांटिटी गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। और फिर आपका नेक्स्ट क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को पुट डाउन करना, और मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना कंट्रोल एंड एक्टिविटीज़ को। तो फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा आफ्टर 1991। तो आर ट्रूली ग्लोबल इकनॉमी इम्प्लाइज अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड वेयर देयर इज़ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन। ट्रूली ग्लोबल इकनॉमी होती जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली फ्लो कर रहे थे अक्रॉस द नेशन, दैट वाज कॉल्ड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस। बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती थी इन इंडस्ट्रीज़, और हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। सी, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़। वॉट एवर टेक्नोलॉजीज़ आर देयर इन आउटसाइड द कंट्री, उसको हम अपनी कंट्री में ला सकते थे, दैट वाज द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। बाहर की कंट्री वी कैन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री फ्रीली। A common acceptable mechanism for settlement of disputes. So that was liberalization, globalization, privatization. Three policies of government was there, that was called new economic policy, and it brings a good change in the economy of Indian market. Is it clear? I hope you all have understand. Do all this work in your copy. Thank you, beta. Have a nice day.